Yes, sir. Yes, sir. So recording. हाँ हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. सो देखिए पॉलीसेक्राइड क्या है. एज द नेम सजेस्ट दिस इज द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स. तो अब सवाल उठता है कि मोनोसेक्राइड क्या एक टाइप के होंगे या एक से ज्यादा टाइप के होंगे. अगर मोनोसेक्राइड यूनिट पॉलीसेक्राइड जो है ऐसे मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है जिसमें सारे मोनोसेक्राइड यूनिट एक ही टाइप के हैं, then that polysaccharide will be called as homopolysaccharide. But in different types of polysaccharides, which are heteropolysaccharides, in this type of polysaccharide, the constituent monosaccharide units are of different types. Okay. For example, starch, glycogen, cellulose, these are homopolysaccharides. Why? Because the monosaccharide unit starch is made up of single type of monosaccharide unit, that is alpha D glucose. Cellulose is made up of single type of monosaccharide unit, that is beta D glucose. Glycogen is again made up of single type of polysaccharide, that is alpha D glucose. So these are homopolysaccharides. कौन? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेल्यूलोज, इस तरह के पॉलीसेक्राइड्स. लेकिन वैसे पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं जैसे कि ग्लूकोसमिनोग्लाइकन्स, पेप्टिडोग्लाइकन्स, इवन द हेपेरिन, chondroitin sulfate, hyaluronic acid, which is present in the synovial joint. Okay, these are heteropolysaccharide, means the polysaccharide in this case is made up of more than one type of monosaccharide unit. समझ में आया आपको ये कंसेप्ट? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए what are polysaccharides definition wise. Most carbohydrates found in nature occur as polysaccharides, that is the polymers of medium to high molecular weight. Usually the molecular weight is higher than 20 kilodalton. Okay, so the polysaccharides are also called as glycans, and they differ from each other, means different polysaccharides differ from each other in the identity. कैसे differ करेगा? In the identity of their recurring monosaccharide units. अगर monosaccharide unit glucose है तो different polysaccharide. If the monosaccharide unit is galactose, then different polysaccharide. So different polysaccharides are on the basis of the identity of their recurring monosaccharide units. Okay, and also the length of their chain. So there is no limit. So here the difference between the protein synthesis and carbohydrate synthesis, polysaccharide synthesis comes, where you already know that the protein synthesis is template dependent. If you compare the polysaccharide synthesis and protein synthesis, or even RNA synthesis or DNA synthesis, because protein synthesis is dependent on template, and that template is present on messenger RNA. So the information of the protein sequence is present in as the information in the present as the information contained in the template strand of the messenger RNA. So this is the template dependent. So the protein synthesis, the length of the polypeptide is determined by its template. It is template fixed polypeptide. So therefore, different size of polypeptides are generated via different
encoding or decoding of the information contained in the messenger RNA. Different messenger RNA lead to different types of polypeptides, but the synthesis of polysaccharides is not template dependent. Okay, in fact, many different types of enzymes are responsible for the elongation of the chain of the polysaccharide. So monosaccharide units are joined together in a successive fashion, one after another, by enzymatic reaction. So there is no limit of this polysaccharide molecule that these many monosaccharide residues it will have. Suppose, for example, the largest, or you can say the biggest polysaccharide, means the polysaccharide having the largest, highest molecular weight, around one, not the highest, actually molecular weight will go in millions. Okay, but they have more than 1 lakh monosaccharide units. There are also some polysaccharides. So glucosaminoglycans is the example of that one is the largest, biggest polysaccharide, and that is heteropolysaccharide. So कहने का मतलब हुआ कि पॉलीसेक्राइड को जरूरी नहीं कि 1 लाख हो, 1 लाख से कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 100, 200, 500 कम ज्यादा हो सकता है. सो द लेंथ ऑफ द इवन द स्टार्च पॉलीमर जो है उसमें अमाइलोज चेन होता है, अमाइलोपेक्टिन चेन होता है. 2 types of chains are there. So the length of these chains are variable. So it depends totally upon the enzymes which is responsible for elongating this polysaccharide growing chain. Okay, so the length of polysaccharide is not fixed. It can be variable. It will be varying in length. Okay, but the length of polypeptide or peptide synthesis, the length is fixed and determined by the sequence present in the template strand. So that one is the specific. So, but polysaccharide जो है variable length का होगा because this is not template dependent. आई बात समझ में? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So क्या कह रहा है ये? तो पॉलीसेक्राइड डिफरेंट है, एक पॉलीसेक्राइड दूसरे पॉलीसेक्राइड से डिफरेंट हो सकता है. किस बेसिस पर? कि उसके अंदर मोनोसेक्राइड का किस प्रकार का मोनोसेक्राइड यूनिट है, किस प्रकार के मोनोसेक्राइड यूनिट से बना हुआ है, प्लस द लेंथ ऑफ देयर चेन, टाइप ऑफ द बॉन्ड्स लिंकिंग द यूनिट्स, whether that bond is alpha 1,4, whether that bond is beta 1,6. So the type of bond also, the unit linking, जैसे कि स्टार्च में अल्फा 1,4 लिंकेज है, सेलुलोज में बीटा 1,4 लिंकेज है. So these 2 types of polysaccharides become very different. Although the monosaccharide unit is सेम ग्लूकोज, बट इसमें क्या है, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज है स्टार्च. Okay, so the length of in the type of bonds linking the units and in the degree of branching. So ये भी फैक्टर है. कुछ पॉलीसेक्राइड्स जो है लीनियर होते हैं. ओके, एंड सम पॉलीसेक्राइड्स आर ब्रांच. देखो सुबह हम पढ़ा रहे थे, एक चीज मैंने गलत बता दिया आप लोगों को था. रिड्यूसिंग शुगर ग्लाइकोजन जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है. क्यों? हम अभी बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे. नॉन रिड्यूसिंग है.
Okay, sir. ठीक है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, स्टार्च इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग, ऑल दीज आर नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स, क्योंकि रिड्यूसिंग एंड जो है अवेलेबल नहीं है या बहुत ही कम है। हेमी एसिटल और एसिटल रेशियो इज वेरी वेरी लो, इस वजह से। अब देखिए क्या कह रहा है, एंड द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। हाँ, तो डिग्री ऑफ ब्रांचिंग जैसे अब वन बाय वन देखते हैं। होमो पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च हुआ, ओके, स्टार्च में भी दो तरह के पॉलीमर होते हैं, अल्फा अमाइलोज, अल्फा एमाइलोज, वन सेकेंड, अल्फा एमाइलोज है ना, हाँ, अल्फा एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज, अल्फा एमाइलोज पॉलीमर जो है वो लीनियर है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच है। ठीक। तो ये दो तरह के पॉलीमर होते हैं किसमें, स्टार्च में। तो स्टार्च को आप क्या कहोगे, स्टार्च इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर, अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। उसके बाद एक है ग्लाइकोजन। ठीक, ग्लाइकोजन जो है और भी ज्यादा ब्रांच होता है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है ग्लाइकोजन में। लेकिन ये जो ब्रांचिंग है, इस ब्रांचिंग में बॉन्ड पैटर्न ऐसा है कि द एंड ऑफ, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, द एंड ऑफ द ब्रांचिंग इज नॉट एंडिंग इन द इज नॉट एंडिंग इन द रिड्यूसिंग एंड। यहाँ पर रिड्यूसिंग एंड नहीं है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ओके। तो स्टार्च जो है स्टोरेज पॉलीमर है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड है, फाउंड इन प्लांट। एंड ग्लाइकोजन इज स्टोरेज होमोपॉलीसेक्राइड फाउंड इन, आवाज आ रही है मेरी, धीरे तो नहीं आ रहा है? Yes, sir. ठीक है मेरा? Yes, sir. ठीक है, ओके। And glycogen is the storage homopolysaccharide found in animal cells. ठीक, starch is a storage homopolysaccharide found in plant system, and in animal system glycogen is there. जो काम स्टार्च का यहाँ है वही काम ग्लाइकोजन एनिमल सिस्टम में कर रहा है। कुछ स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, एनर्जी गिविंग पॉलीसेक्राइड तो नहीं है, दिस इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। तो प्लांट किंगडम में सेल्यूलोज है स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड, एनिमल किंगडम में कौन सा है स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेक्राइड, एनीबॉडी? काइटिन, नाम सुने हो काइटिन? Chitin. Chitin is the structural homopolysaccharide made up of N-acetyl glucosamine, and it is found in the exoskeleton of insects. Insects का जो बाहरी कवरिंग जो है, scales और exoskeleton body, even on the mollusk body, this is the homopolysaccharide, structural homopolysaccharide called chitin is present. Okay. उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हेटेरोपॉलीसेक्राइड। ठीक, अब वन बाय वन हम देखते हैं, बढ़े आगे।
इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, सो होमोपोलीसेक्राइड जो है, homopolysaccharides contain only a single type of monomeric species. ये फिगर दिख रहा है आपको? The first one is, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? Yes, sir. आ रही है। यस सर, आ रही है सर। आ रहा है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, ये फिगर दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस वन इज, यस सर। ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? होमोपोलीसेक्राइड है। दिस वन इज अनब्रांच्ड एंड दिस वन इज ब्रांच्ड। सो इसका एग्जांपल क्या हो गया? ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन पॉलीमर, ब्रांच्ड होमोपोलीसेक्राइड्स में। ठीक, और अनब्रांच, सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हाँ मेरे इधर नेटवर्क गड़बड़ है। अभी आ रहा आवाज? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, अब आ रहा है। यस सर, अब आ रहा है। ओके, सो होमोपोलीसेक्राइड में अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक सिंगल चेन है, एक ही तरह के मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर रिपीटिंग। तो ये किस तरह का, ये किस में मिलता है? स्टार्च का एमाइलोज, पॉलीमर में। दो तरह के पॉलीमर होते हैं स्टार्च में। और इस तरह का ब्रांच्ड होमोपोलीसेक्राइड्स कौन से हैं? आपके ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। ओके, एमाइलोपेक्टिन फाउंड इन स्टार्च। और अनब्रांच्ड में फिर स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, होमोपोलीसेक्राइड जो सेल्यूलोज है, वो भी अनब्रांच्ड होमोपोलीसेक्राइड है। कौन? आपका सेल्यूलोज अनब्रांच्ड है। एंड काइटिन, काइटिन ऑल्सो, जो कि एनिमल सिस्टम में है, स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेक्राइड, काउंटर पार्ट ऑफ सेल्यूलोज। काइटिन, that also is unbranched homopolysaccharide। और हेट्रोपोलीसेक्राइड्स किनको कहते हैं? जिसमें टू मोनोमर टाइप्स, टू और मोर मोनोमर टाइप्स। इसमें देखिए अनब्रांच्ड है, इसमें आप ये देखेंगे कि देयर इज ए रिपीट ऑफ डाइसेक्राइड। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? द रिपीट ऑफ डाइसेक्राइड इन unbranched heteropolysaccharide here. This is a disaccharide or not? Tell me. This is disaccharide. And if you consider this disaccharide as a unit, then this unit is repeating. Okay? Yes or no? नहीं समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस कि नो? ये देखो डाइसेक्राइड यूनिट रिपीट हो रहा है इसमें। यस सर। Yes, sir. डाइसेक्राइड यूनिट है, तो डाइसेक्राइड में दो तरह के, इस डाइसेक्राइड में दो तरह के मोनोसेक्राइड्स हैं, इसीलिए ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड है, अनब्रांच्ड। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड में मल्टीपल मोनोमर टाइप्स भी होते हैं। ये है ब्लू कलर का, दूसरा ग्रीन कलर का है, तीसरा है, तीन तरह के इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं। And this is branched also. So the heteropolysaccharides can be branched or unbranched. Homopolysaccharide also can be found in branched form and unbranched form. तो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं इसके। समझ में आया होमोपोलीसेक्राइड और हेटेरोपोलीसेक्राइड का अंतर? Yes, sir. Yes, sir. Some homopolysaccharides serve as storage
for monosaccharides that are used as fuels, जैसे कि starch and glycogen are homopolysaccharides of this type. ठीक है, which type? The homopolysaccharides which are serving as storage form of monosaccharides that will be used as fuel for future use. So these type of saccharides, polysaccharides, starch and glycogen serve this purpose, are homopolysaccharides of this type. Other homopolysaccharides such as cellulose and chitin, for example, serve as structural elements in plant cell walls and animal exoskeletons. Plant cell wall में cellulose और animal exoskeleton में chitin है. तो ये सब होमोपॉलीसेक्राइड ही हैं, सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये चारों जो है होमोपॉलीसेक्राइड है, यानी चारों जो है एक ही तरह के मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि चारों में मोनोसेक्राइड यूनिट एक ही है, कॉमन है, नहीं। स्टार्च इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। इसका मोनोसेक्राइड यूनिट, स्टार्च का मोनोसेक्राइड यूनिट, ग्लाइकोजन का मोनोसेक्राइड यूनिट, सेलुलोज का मोनोसेक्राइड यूनिट, ओके। स्टार्च का और ग्लाइकोजन का मोनोसेक्राइड यूनिट इज नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम, बट हियर काइटिन का मोनोसेक्राइड यूनिट इज डिफरेंट, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, ओके। सेलुलोज का मोनोसेक्राइड यूनिट इज अल्फा डी ग्लूकोज, सो तो अल्फा डी ग्लूकोज इज डिफरेंट। स्टार्च का मोनोसेक्राइड, सॉरी, बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज का है, स्टार्च का हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो मोनोसेक्राइड यूनिट स्टार्च का और सेलुलोज का अलग अलग है, लेकिन पूरा का पूरा स्टार्च जो है वो एक ही तरह का मोनोसेक्राइड यूनिट से बना हुआ है। समझे बात को आप? यस सर। यस सर। वो होमोपॉलीसेक्राइड कहा गया है, ठीक। और जैसे काइटिन और सेलुलोज जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है। अब देखिए हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स किसको कहते हैं? हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स। देखिए अभी तक आप लोग बेसिक साइंस में जो 10th क्लास तक 12th क्लास तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप क्या पढ़ रहे हो अभी तक, क्या जानते थे कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? आप यही जान रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट इज गिविंग यू द एनर्जी। अब आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट के कितने काम हैं, ठीक। सब हम लोग अलग अलग तरह का पॉलीसेक्राइड्स देखेंगे, ओके। मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर भी वो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर जो थे वो सारे सिंपल शुगर, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, उनका क्या काम था? उनका भी काम एनर्जी देना ही है, वो टोटल एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर पॉलीसेक्राइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, they attribute different functions in your body, okay। So and those, अब देखिए एनर्जी देने के काम में तो स्टार्च और ग्लाइकोजन इज इन्वॉल्व, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सेलुलोज एंड काइटिन इज इन्वॉल्व, ओके। बट आप इसलिए पढ़ते हो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, क्योंकि आपके बॉडी में न सेलुलोज है न काइटिन है, ठीक है। तो इस प्रकार का होमोपॉलीसेक्राइड इज नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी, इन वर्टिब्रेट्स, so you ignore these things, but they are also involved in the structural role. So heteropolysaccharides जो है provide extra cellular support for organisms of all kingdoms, even plant kingdom, fungi kingdom and animal kingdom, सब में हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स है। और ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट का मतलब हो गया सेल के बाहर से, स्टार्च और ग्लाइकोजन सेल के अंदर बन रहा था होमोपॉलीसेक्राइड, ओके।
इवन द हेट्रोपोलिसेक्राइड देयर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो सेल के बाहर ऑक्यूपाई कर रहा है पोजीशन, इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द सेल टू गिव द बाउंड्री ऑफ द सेल ए टफ स्ट्रक्चरल लेयर। लेकिन हेट्रोपोलिसेक्राइड्स जो है वो कहां प्रेजेंट है? इन बिटवीन द सेल्स, सेल के बीच में है हेट्रोपोलिसेक्राइड्स। ओके, हेट्रोपोलिसेक्राइड्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट फॉर organisms for all kingdom। एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट, सेल के बाहर से सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल द रिजिड लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप द पेप्टिडोग्लाइकन। आगे दिखाऊंगा फोटो में आपको, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्यों बोल रहे हैं? अब देखो ग्लाइकन है इसमें, ग्लाइकन मीन्स पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकन्स, अभी पढ़ा है पहले पैराग्राफ में। एंड पेप्टिडो एलिमेंट इज आल्सो देयर, मीन्स ए शॉर्ट पेप्टाइड, छोटा पेप्टाइड है, और उसके बाद ग्लाइकन्स है, फिर छोटा पेप्टाइड है, देन ग्लाइकन्स है। ओके, एंड द पेप्टाइड इज आल्सो लिंक्ड टू अनदर चेन ऑफ दिस ग्लाइकन एंड पेप्टाइल चेन। इस तरह करके there are many layers in the bacterial cell wall which are having the peptidoglycans. So glycan polysaccharide, and polysaccharide is linked with another polysaccharide by a